welcome or welcome back to my channel. So today I am gonna share my experience as a cabin crew. I worked with Air India for almost 6 years now, and now I am on maternity leave, so just letting you guys know. And I'm not sure whether I'm gonna continue doing it or not, but I thought I'll just make my experience a video regarding my time that I had with Air India for 6 years. So if you guys are thinking why I'm looking down, so I am gonna look at the note that I made. It's actually 2 pages, so I might forget things. So the first thing I'm gonna share is the criteria to be a cabin crew, whether you're eligible for a cabin crew or not. And then I'm gonna speak about the interview, some of the questions the most common questions they ask. So also a few tips and also my experience. So let's start the video. So the first thing is age criteria. So for most of the airlines they hire 18 to 27 years. So आपको 18 या 27 के बीच में होना चाहिए, minimum 18. So and when I joined I was also 27, and that time it was government airlines. So उस time SC का भी थोड़ा बहुत वो था. And for freshers it's 18-27. For experience it might differ again, and you have to be 10+2. Also graduate होने से और बढ़िया. And the height is so here the height might vary for airline to airline, तो but generally 155 centimeters होना है, ज़रूरी है. आप इससे अगर short हो तो I'm sorry, आपको नहीं लिया जाएगा. And आपको इंटरव्यू के टाइम में भी जब आप जा रही हो, so you can't be wearing high heels and saying that oh I am 155. No, वो बहुत ही strict check करेगा आपको, और तो you can't lie about that. So 155 centimeters for female cabin crew, and for male you have to be 165 to 177. Male का इतना मुझे आइडिया नहीं है. और नेक्स्ट है BMI, विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स. सो नाउ द बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको शायद सभी को पता नहीं होगा, सो मुझे भी पता नहीं था फर्स्ट में. So it's basically BMI. It's like body proportionate to your weight, body weight proportionate to your height. Sorry. तो आपका 18 to 22 के रेंज में आना चाहिए. मेरा अभी ज़्यादा है. So आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपल गूगल में जाना है, सफारी पे जाके आपको BMI कैलकुलेटर निकालना है. वहाँ पे इफ़ यू टाइप BMI कैलकुलेटर, वो वहाँ पे लिखा आएगा. आपका हाइट और वेट डिटेल्स मांगते हैं. सो यू राइट योर height, like मेरा 5 feet 6 inches है, तो you write 5 feet 6 inches and your weight अगर आपको पता है तो वो डालो और वो निकल जाता है कैलकुलेटर से BMI. अगर overweight है, underweight है, वो सब कुछ निकलेगा. और अगर रेंज पे हो आप तो वो भी निकले जाएगा. सो BMI बेसिकली वो है. No visible tattoos or marks or any acne scars, वो सब. I'm not gonna lie, I have tattoos, but it's not visible. अगर visible भी हो तो you can conceal. if अगर आपको conceal करके जाना it's अगर हो सके possible है तो you please do that. But they are gonna check. they are very strict about it. So अगर विजिबल है, लाइक विजिबल एज इन जैसे देखो आपका अभी का न्यू यूनिफॉर्म मनीष मल्होत्रा का ब्लाउज़ तो इतना है. सो एयर इंडिया का बता रही हो. सो अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग है. हमारे उस टाइम में भी ब्लाउज़ इतना था, तो उस टाइम मैंने नहीं किया था, बट बाद में किया था. एंड मैं लीव पे भी थी, ज़्यादा मैं लीव पे थी. आई हैव 2 daughters, तो मेरा इतना वो नहीं था. आई वॉज नॉट एक्टिवली फ्लाइंग, तो एंड इट वाज नॉट विजिबल दैट टाइम. तो मैं छुपा सकती थी, तो मैंने छुपा लिया था. और मैं लॉन्ग यूनिफॉर्म लॉन्ग स्लीव ही लगाती थी, तो हाथ में था तो वो छुप जाता था. सो ऐसा. तो अगर आपको विजिबल यहाँ पे है ऐसे, तो ये सब विजिबल, बिकॉज एनी विच वेज यू आर गोना वेयर ब्लाउज एंड ये सब दिख जाएगा. बट अगर अंदर है, पीछे बैक पे, स्टमक पे, इस साइड है, तो वो छुप सकता है. तो दैट्स ओके. एंड ऑल्सो these days they are very strict about your acne scars, marks and all. तो even if you conceal, देखना अगर एक्टिव पिंपल है तो आप थोड़ा बहुत उसको फटाफट
मैनेज करना है तो कर लो, अच्छे से खाओ पियो तो आपका अंदर से अगर क्लीन है तो एक्ने भी क्लीन हो ही जाएगा। बट वो बहुत स्ट्रिक्ट है उस बारे में, मैंने सुना था, हमारे टाइम में भी था, बट नाउ थिंग्स आर लाइक थोड़ा बहुत हो गया है। और मेडिकली फ़िट, लाइक मेडिकली फ़िट एज इन आपको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई जो एयरलाइंस के लिए हानिकारक हो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ योर हेमोग्लोबिन इज़ लो, इफ़ योर थायराइड, और इफ़ यू हैव क्या बोलो यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई प्रॉब्लम, ये सब बहुत सीरियस है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है तो आप फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको चक्कर आ जाएगा। एंड अगर फ्लाई करेंगे तो कस्टमर्स का भी देखभाल कर सकते हैं हम लोग, गेस्ट का देखभाल कर सकते हैं। अगर आप भी बीमार हो तो आपका काम ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आपका अदर कलीग को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको अगर हेमोग्लोबिन, यूरिन इन्फेक्शन या जो भी प्रॉब्लम है आप लोग वो मेंटेन करो, क्योंकि आपका टेस्ट, हाँ यहाँ पे और एक अभी आएगा नेक्स्ट विच इज़ मेडिकली फिट मीन्स आपका वो टेस्ट भी होगा। लाइक वंस यू क्लियर योर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू राउंड एंड ग्रुप डिस्कशन एंड एवरीथिंग, बाद में और एक आएगा जो है मेडिकल टेस्ट होता है, और उसमें आपको हेड टू टू सब कुछ चेक होता है, आपका सब कुछ। सो यू कैन लाई अबाउट एनीथिंग। तो आपका अंदर सब कुछ आई से लेके एवरीथिंग दे आर गोना चेक, अंदर योर हार्ट रेट, योर आई साइट, योर ईयर्स, योर नोज़, योर एवरीथिंग। सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेक केयर इंटरव्यू जाने से पहले। ये है। और आई साइट से, हाँ आई साइट का मैंने बताया, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा ही है। आई साइट का मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको अगर आप स्पेक्टिकल्स लगाती हो सो आपको लेंस लगाना पड़ेगा वंस यू फ्लाई, बिकॉज स्पेक्टिकल्स में यू कैन नॉट विद द यूनिफॉर्म, यू आर नॉट अलाउड। सो वो है एक चीज़। और अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हो तो आई एम रियली सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी ए कैबिन क्रू, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस में यू कान कैबिन क्रू में दे डोंट टेक, पायलट्स हो या फिर कैबिन क्रू, यू आर नॉट eligible to be a cabin crew or pilot if you have color blindness. And next is your documents. The main important document you need is Indian passport. Like passport you have to have it. So अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अभी से ही अप्लाई कर दो, बिकॉज वंस यू आर क्लियर्ड एंड यू गो फॉर योर ट्रेनिंग, यू हैव 3 months ऑफ ट्रेनिंग, सो उसमें आपको टाइम मिल जाता है। सो तत्काल में आजकल जल्दी भी हो ही जाता है। सो प्लीज़ आप लोग अप्लाई कर लो अभी से ही, बिकॉज यू विल नीड पासपोर्ट। आपको हर जगह पे पासपोर्ट चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर इंटरनेशनल क्रू अगेन पासपोर्ट के बिना तो यू कैन, सो यू विल हैव टू हैव इट। सो आप लोग प्लीज़ अप्लाई कर लो, इतना टाइम नहीं लगता है। अगर टाइम भी लग जाता है तो भी आपके पास 3 महीना है, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग सेशन यू विल गेट ए पासपोर्ट, एंड बाकी आधार पैन कार्ड तो आपको होना ही है। एंड नंबर 9 पे मैंने ये लिखा है फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। नाउ गाइज आई एम नॉट गोना से दैट आई एम ऑल्सो परफेक्ट, सबका होता है, सबका फ्लॉस होता है, सो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बट अगर आपको फ्लुएंट, आपको आपका कैबिन क्रू जॉब इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इफ़ यू डोंट हैव दैट, सो हाउ यू आर गोना talk or communicate with your guest, so you have to have a very fluent English and Hindi, आपको दोनों ही आना चाहिए। अगर दूसरा लैंग्वेज आपको पता है तो प्लस पॉइंट, वेरी गुड, वेल एंड गुड, इट्स लाइक एक और चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। तो आपको हिंदी ऐसे बहुत सारा सेक्टर्स है, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं यहाँ पे भी, तो उसमें 90% ऑफ द गेस्ट दे स्पीक ओनली हिंदी। सो नाउ when you say you don't speak Hindi, now the guests, if they speak in Hindi and you reply in English, that's not gonna look good, right? It's kind of like an insult to them. So अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप इंग्लिश में रिप्लाई दो, कोई आपको हिंदी से बात कर रहा है तो यू हैव टू रिप्लाई देम इन हिंदी। यू कान बी लाइक थोड़ा वो ओवर स्मार्ट दिख जाता है। सो तो वो है, तो आपको हिंदी तो आना ही चाहिए। ओके गाइस, हिंदी तो आना ही चाहिए आपको बेसिक। So if you have a problem, I will give you some tips, like आप मिरर के सामने every day आप थोड़ा बहुत, या फिर आपकी फैमिली में आप बातचीत किया करो, because that is gonna help you guys to be little
लाइक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा वो, तो आप बात कर लो अभी से ही विथ योर फ्रेंड्स फैमिली जो आपको एवरीडे आपसे बात करता है. सो यू स्पीक इन इंग्लिश, एंड इफ़ यू आर ओके इन योर इंग्लिश एंड इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टीज इन हिंदी, तो आप हिंदी में कम्युनिकेट करना ट्राई करो. जो जो आपको पता है जिस में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसमें वर्क करना शुरू कर दो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन कैबिन क्रू जॉब. सो वो है. ओके, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग. सो मैंने सब कुछ ये क्लियर कर दिया है. अगर मैंने आई होप मैंने कोई चीज़ तो बोला तो नहीं है. हाँ, दैट्स इट. ओके, नाउ आई एम गोना कम. आपको अभी मैं इंटरव्यू का थोड़ा बहुत बताऊँगी. लेट मी जस्ट शेयर यू माई एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. ओके, इट वॉज़ वे बैक नाउ 2017 के एंडिंग में. उस टाइम हम लोग को साड़ी पहनना था for the interview. So, and I was not well dressed, guys. So I'm telling you, when you go for an interview, you have to be well groomed, you have to be like well dressed. Okay, जो आपको बताया गया है कि उसमें आओ, attire पे आओ, you have to wear that. So हमारे टाइम में that was साड़ी. So for the very first time मैंने साड़ी लगाया. I watch YouTube tutorial, ये सब देख के गई थी, and my साड़ी was hodgepodge, it was everywhere. So it was a very shameful thing for me, but I still walked with confidence. So guys, all you need is confidence. So have that confidence and the smile. So मैं गई, and then they asked me like, first of all सब लोग देख के रहा है, you know, इसका साड़ी वहाँ से निकल रहा है. मैं ट्राई किया, but मेरे से नहीं हो पाया. But I spoke the truth. So when they asked me कि आपको साड़ी किसने पहनाया, so they were like asking me those questions. तो मैंने बोला कि I did it by myself. So that was a plus point for me, which I thought would turn out to be like, मुझे लगा कि ये ख़राब होगा, ये एक मेरा drawback होगा. That turned out to be my plus point. So they were very like happy with my reply, and they were like, oh you did that for this interview, आपने try किया, I'm very happy. ऐसे ऐसे बोल के वो लोग बहुत appreciate किया मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा. So I stood out like. तो ये और एक चीज़ है जो आप इंटरव्यू में जा रहे हो. सो पीपल आर गोना बी लाइक, देखो सब लोग एक ही चीज़ के लिए आते, तो कोई लोग तो रट्टा मार के भी जाता है. ये बोलूँगी तो आपको ऐसा भी नहीं बोलना है. ओके, जो आपने गूगल पे चेक कर लिया, ये वो क्वेश्चन आंसर नहीं, आप रोबोट की तरह नहीं बोल सकते. सो आपको थोड़ा बहुत वो स्माइल, तो हर कोई ये बोल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत एक अलग चीज़ भी बोल दो. आप थोड़ा अलग लगोगे. ऐसे अलग लगोगे मैंने तेना के बोलते, oh my hobby is this, singing, dancing, ये तो सब. तो you say something different like, oh I like to play football, or I like to do this. थोड़ा अलग चीज़ बोलो, तो थोड़ा बोलो लोग देखेंगे, तो you stand out. आप वहीं पे आप एकदम अलग हो जाते हो. मेरा उस टाइम मेरा तो हॉबीज़ वैसे तो कुछ भी नहीं है अदर देन शॉपिंग एंड देन ऐसे बैठना. तो पर मेरा हॉबीज़ मैंने भी बोल दिया, कुछ अलग सा बोला था, पर मैंने अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. इंटरव्यू हुआ तो उस टाइम वो लोग मुझे फ़र्स्ट तो साड़ी में देख के ऐसे क्वेश्चंस पूछा. उसके बाद हमारा हुआ ग्रुप डिस्कशन. ना आपका जब भी ग्रुप डिस्कशन आता है, आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. सो आपको जब भी ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, उन लोग आपको एक टॉपिक देगा. सो यू हैव टू स्पीक अबाउट द टॉपिक, यू हैव टू discuss about that topic. Now when you guys are discussing 4 or 5 of you, तो आपको वो इंटरव्यू आपको राउंड करके भी देखते हैं, घूम के वो लोग जा के देखते हैं कि ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. सो व्हेन दे सी दैट वहाँ पे आपको बोलना है, इन लोगों को भी बोलने देना चाहिए, बिकॉज कैबिन क्रू जॉब इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क. सो आप जब भी फ्लाई करोगे, आप लोग 4 5 6 7 साथ में फ्लाई करोगे, तो वहाँ पे आपको टीम होना चाहिए, टीम में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक वो काम कर रहा है तो मैं नहीं करूँगी, या फिर ये वो. तो उस टाइम वही ग्रुप डिस्कशन का मीनिंग यही है कि आपको देखा जाएगा कि आप लोग यू आर परफेक्ट टू वर्क एज अ in a team or not. So उस टाइम पे आप देखो, if somebody is talking you just listen, या ऐसे करके डालो. आपका इनपुट्स डालना है तो आप बाद में डालो. let them speak first and finish it, and when your turn comes you speak. आप बोलो ऐसे से है, तो आप लोग वहाँ पे ये है ग्रुप डिस्कशन. दैन कोई भी टॉपिक होगा गाइज, दैट आई कांट से अभी कौन सा टॉपिक होगा, क्या देगा, वो सब अलग है. और आजकल का मैंने सुना है क्वेश्चंस भी बहुत सारा अलग भी पूछ सकते हैं, पर हमारे टाइम में ये लोग ज़्यादा ही
क्वेश्चंस जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा तो यू नो दे विल आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और व्हाई यू वांट टू वर्क इन दिस एयरलाइंस और यू नो आपका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, हैव यू एवर गॉन फॉर एनी अदर इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज इन आप यही एयरलाइंस पे पहले बार आ रहे हो या आपने कोई भी इंटरव्यू दिया है पहले, ये सब पूछेगा और कुछ भी पूछ सकता है और दे कैन गिव यू एनी टॉपिक एंड आस्क यू टू स्पीक फॉर यू नो 2 minutes or 1 minute. So but here guys, when they are asking you a question, okay, saying कि tell me something about yourself, तो आप एकदम वो मत हो जाना ओ दिस हाय ये वो, इतना कैजुअल भी नहीं होना, इतना फॉर्मल वो भी नहीं होना है। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको आई कांटेक्ट भी मेंटेन करना है एंड यू हैव टू हैव दैट स्माइल, थोड़ा बहुत स्माइल होना ज़रूरी है। सो अगर मान लो आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू आपका पर्सनल इंटरव्यू है और होता है आपको यू नो फर्स्ट आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ये से हो के बाद आपका लास्ट का पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो आपको वहाँ पे वो लोग देखा जाएगा कि ठीक है इसको लेना है कि नहीं, तो उस टाइम इज़ योर गोल्डन चांस आपको क्लियर करने के लिए। तो अगर आपका बाकी सब में भी थोड़ा बहुत ढीला है तो भी चलेगा, बट व्हेन यू आर सिटिंग देयर वन ऑन वन विद देम, उस टाइम यू नो एवरीथिंग कैन चेंज गाइस, सो डोंट लूज होप। तो वहाँ पे आप अगर बैठ रहे हो तो से वो लोग पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो यू से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद विशिंग देम लाइक गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, माई नेम इज़ दिस, ये है, सो ऐसा करके स्टार्ट करो। सो मेरा नाम ये है, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, यू नो आई हैव माई इन माई फैमिली आई हैव दिस एंड दैट, और आई वर्कड विद, अगर आपका कोई है एक्सपीरियंस या फिर अगर नहीं है तो मत बताना मैं ग्रेजुएट करके आई हूँ या फिर मैंने क्लास 12 पास करके आई हूँ एंड दिस एंड दैट। एंड व्हेन यू से समथिंग अबाउट योर प्लेस, लाइक फॉर मी फॉर एग्जांपल मेरा आई कम फ्रॉम नागालैंड, सो आई स्पोक समथिंग गुड अबाउट नागालैंड, लाइक आवर लैंड इज़ अ फुल ऑफ यू नो इट्स अ फेस्टिवल का लैंड है, सो आई स्पोक अबाउट दैट। हमारा वहाँ पे हॉर्नबिल होता है तो उसका ही बोला एंड दे वर लाइक रियली एक्साइटेड, दे वर लाइक ओह वाओ, यू नो दे सेड दे विल ऑल्सो विजिट, और आई थिंक उन्होंने किया होगा पता नहीं, सो मैंने भी बोला उनको हाँ प्लीज़ डू कम, ऐसे करके ना उनसे बात किया तो इंटरेक्ट किया एंड they asked me why you want to be a cabin crew. Now guys, everyone has the same answer to this कि मेरा ड्रीम है, मेरा हाँ है, सबका होता है पर हर किसी का नहीं होता है। लाइक मैं यहाँ पे वो नहीं करना चाह रही हूँ, आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रही हूँ, बट मेरा नहीं था, कभी भी नहीं था, मेरा ऐसे हो गया था और मुझे ऐसे बन गई थी उस टाइम पे क्योंकि हो गया था। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देहरादून, मैंने बायोटेक्नोलॉजी करके आई थी, तो उस टाइम दे आस्क्ड मी व्हाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, आई सेड I gave a very straight answer. I smiled and I said, sir, I actually want to earn money. That's why I want to be a cabin crew. It was very simple and very, you know, सीधा straight answer, okay? And they smiled, they laughed. तो उसने हैं करके हंस दिया और बोला आपने ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में किया and you are here, like you are here for this job. I said yes. Why? You know, आपने इतना पढ़ा, हाँ, but मुझे यहाँ पे आना था बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी पैसा कमाना था, सो ऐसा बोला मैंने। तो उनको पता नहीं वो इम्प्रेस किया या ये ऐसा भी नहीं, मैं आई वोंट एडवाइस यू गाइस टू बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट सबको पता भी चल जाता है आपका इंटरव्यू कैसा भी है। अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो आपको ना कैसे बात करना है वो भी आप देख लो, तो आपको ना प्रोफाइलिंग भी करना चाहिए ना। प्रोफाइलिंग से याद आया मुझे, सी आपको ये इंटरव्यू में अगर क्लियर हो कि आप कैबिन क्रू बन रहे हैं तो हमारा जॉब होता है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग मीन्स आप देख के किसी को देख के ही जज नहीं बोलूँगी, जज इज़ वेरी वो हो गया, आप देख के उनको पता चल रहा है कि चलो ये इंसान आज फ़्लाइट में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है, या फिर ये इंसान सैड है, या फिर इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इज़ इट दिस गेस्ट इनको यू नो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर बीमारी में नहीं है, या यू नो ड्रंक करके तो नहीं आया है, तो ये सब आपको चाहिए। या फिर ये बिजनेसमैन है, या ये थोड़ा बड़ा आदमी है तो इससे यू नो ऐसे बात करना चाहिए। ये फिर अगर आपको देख के पता चलेगा ओ दिस फैमिली डजन यू नो कम्स फ्रॉम ये फैमिली तो डजन स्पीक इंग्लिश, तो आपको ये या फिर कुछ भी, सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोफाइलिंग ना। तो आप जब भी बैठ रहे इंटरव्यू के टाइम में भी आपको भी थोड़ा बहुत प्रोफाइलिंग करना चाहिए कि यू नो इंटरव्यू कैसा है, तो आपको पता भी चल जाता है तो आपको क्या बोलना है, ज़्यादा फ्रैंक होना है, ज़्यादा नहीं होना है, और इतना भी नहीं होना। देखो आपको इतना भी ऐसे करके भी नहीं बैठना है, या फिर ऐसे भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत यू नो। एंड व्हेन यू आर सिटिंग ऑल्सो आपको ऐसा करना है,
ऐसा ऐसा करना है, ऐसा बैठना है, यू नो। आप एकदम ऐसे भी नहीं बैठ सकते, ऐसे ऐसे तो कर भी नहीं सकते, बिल्कुल भी मत करना टेबल के ऊपर। सो ये थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें हैं। तो बस ये है गाइस। सो कुछ भी पूछ सकता है। आप पूछते कि यू नो आफ्टर मैरिज वर्क दे शुड वर्क और नॉट, जॉब कंटिन्यू करना है कि नहीं, यू नो बेबी होने के बाद, या फिर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। और फ़ोन का भी बोलते हैं कि वेदर इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, फ़ोन यूज़ करना और इंटरनेट एंड ऑल दिस क्वेश्चंस यू नो आजकल पूछते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं पूछा था, एंड इट वॉज ऑल अबाउट योर पर्सनल। हमको सिर्फ मेरे टाइम में सिर्फ मुझे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ ही पूछा, एंड आई सेड एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट्स इट। वही था मेरा, कुछ भी नहीं पूछा था ये वो वर्ल्ड का कुछ भी नहीं। तो ये है, तो आपको थोड़ा बहुत तो जनरल नॉलेज होना चाहिए। एंड आपको अगर कोई भी एयरलाइंस में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो अगर आप एयर इंडिया में जा रहे हो तो उनका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, वो क्या है, सीईओ कौन है, वो कौन है। इंडिगो में जा रहे हो तो यू नो इंडिगो में तो बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला है, तो वो कैसा कौन सा मिला है, क्या था क्या नहीं था, उसका थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ। एंड अगर अच्छा, और एक चीज़, नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू, आपको रेज्यूमे भी आपको एकदम अच्छा बना के जाना है। अच्छा है जिन, आपको कुछ भी नहीं भरना है वहाँ पे, जबरा बबरा नहीं करना है, बहुत ये वो भी मत लिखो। जस्ट स्पीक एंड स्पैन एकदम क्लियर कट लिखो, नेम एंड गिव योर ईमेल एड्रेस प्रॉपरली, ओके, अच्छे से लिख के दो, एंड फ़ोन नंबर, क्योंकि एवरीथिंग दे आर गोना कम्युनिकेट विथ योर ईमेल। सो वो है, एकदम सिंपल सा रखो, एकदम क्लियर रखो, कुछ भी मत भर दो वहाँ पे। ये चीज़ है। और दो तरह के इंटरव्यू हो सकते हैं, एक वॉक इन है और एक इनविटेशन होता है, बाय इनविटेशन। सो वॉक इन में आपको पहली बार तो आपको एयर इंडिया कैरियर्स करके जाना है, वहाँ पे आपको गूगल में करना है, या फिर इंडिगो में CAREERS, तो वो आपको टाइप करके आ जाएगा। तो आपको जब भी कोई भी एयरलाइंस का देखना है, तो यू हैव टू पुट दैट इन दैट गूगल की .CAREERS, तो एयर इंडिया .careers करके दबाना है, तो वो आ जाएगा, आपको दिखा जाएगा कौन सा सिटी में, कौन सा डे पे, कौन सा डेट, वेन्यू, एवरीथिंग विल बी गिवन। सो यू गो, वॉक इन इंटरव्यू है तो गो स्ट्रेट, गो विथ योर रेज्यूमे, यू नो, स्माइल, वेल ड्रेस्ड, एवरीथिंग, एंड देन गो। और एंड ऑल्सो गाइज, ओरल हाइजीन, आपको ओरल हाइजीन भी बहुत मेंटेन करना है। यू कान बी लुकिंग गुड एंड देन व्हेन यू ओपन योर माउथ, यू नो, इट्स लाइक अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वो है, तो अगर आपको पता है कि आपका ओरल हाइजीन का प्रॉब्लम है, तो आप वो भी वर्क करो, यू नो, ये सब एकदम क्लीन होके, आपको ऐसे में नहीं कुछ चपा रहे हो आप एंड देन यू आर गोइंग, नो, इट डजंट लुक प्रोफेशनल एट ऑल। सो वो एक चीज़ है, वो करना है आपको। प्लीज़ रिमेंबर दैट योर ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो इन फ्यूचर व्हेन यू वर्क एज अ कैबिन क्रू और एनी विच वेज, यार, ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे भी यू नो लोगों को थोड़ा वो हो जाता है, तो वो चीज़ है। सो गो वेल ड्रेस्ड एंड टेक योर CV, ओके, हैव दैट स्माइल, कॉन्फिडेंस। सी इवन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग ना, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो गाइज आई एम टेलिंग यू, यू विल क्लियर इट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो। और क्या चीज़ है, और अगर इन्विटेशन है तो आपको सिर्फ वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। इफ़ यू आर सेलेक्टेड देन दे विल कॉल यू, आपको बताएंगे कि इस डेट पे आप ये वेन्यू पे आ जाओ करके, टाइम करके। तो वेन एवर यू गोइंग, अगर इन्विटेशन पे इन्विटेशन से आप जा रहे हो, तो प्लीज़ कैरी अ हार्ड कॉपी और एज वेल ऑल्सो सॉफ्ट कॉपी इन योर फ़ोन। यू नो आजकल गार्ड्स को दिखाना होता है, ऐसे था पहले नहीं था, तो आपको वो दिखा के ही आपको अंदर जाने देंगे। तो प्लीज़ 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 कैरी हार्ड कॉपी एंड एवरीथिंग, योर डॉक्यूमेंट्स का सब जेरोक्स पकड़ के जाओ। कुछ भी हो सकता है, एक फ़ाइल ख़रीद लो अच्छा सा, उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स करके जाओ। देखो गाइस, इट्स नॉट इवन नीडेड, ओके, बट जस्ट यू नो, जस्ट लेटिंग यू गाइस नो कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी मांग भी सकता है कुछ भी। तो आप प्लीज़ आधार का, पैन कार्ड का, अगर पासपोर्ट है तो उसका, अगर पासपोर्ट आपने बनाने दिया है तो उसका रिसीट का, ये सब आप प्लीज़ कैरी Xerox copy of everything and then put it in your file. Carry a pen and passport photo, please. वो तो लेके ही जाना ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो जो भी मेरा आइडिया था वो सब बता रही हूँ। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू एडवाइस यू गाइस, whoever is trying or pursuing to be a cabin crew, please keep this in mind that this job is not easy, okay. I'm not discouraging you, but
I'm just letting you know the truth. This job is not easy. Obviously, this job has given me so much and I'm really happy and I appreciate this. आज मैं जो भी हूँ ये जॉब की वजह से ही हूँ. But you know the drawbacks you get, like you know you have to have a very big heart. क्योंकि आपको हर टाइम you will have your personal problems also, but when you walk for your job, like every day आप जा रहे हो, फ्लाइट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो you have to have the smile. You can't be having that problem आपका घर का जो भी है पर्सनल लाइफ पे. नो, बिकॉज आप अगर मेंटली फिट हो, आप ठीक हो तो ही आप किसी का मदद कर सकते हो. अगर आप फिट नहीं हो तो यू कांट डू एनीथिंग. तो आपको फिट रहना है, एवरीथिंग फिजिकली मेंटली यू हैव टू बी फिट, क्योंकि आपको फिर वो एक सेफ्टी हैज़ार्ड हो जाएगा दूसरों के लिए भी. तो वो है. तो अगर आप होम सिक हो तो दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज आपको हर टाइम आपको यहाँ वहाँ फ्लाई करना होगा. तो यू कांट बी होम सिक एंड दिल छोटा करके नहीं रह सकते. और कभी आप फेस्टिवल्स मिस करोगे. मैंने बहुत बार किया, अपना क्रिसमस मिस किया, अपना स्पेशल बर्थडेज मेरा फैमिली मेम्बर्स का आई मिस. जो सोचते कि नो कैबिन क्रू इज़ ऑल अबाउट ओ मनी, लग्जरी, बड़े बड़े होटल में जाके रहते. नो गाइज, you have to study a lot. Okay, so just letting you know, these 3 months once you clear, you have to study a lot. You have to study your first aid. आपको सब कुछ पढ़ना होता है. आपको हाउ टू डिलीवर अ बेबी, CPR, ये सब कुछ करना होता है. तो इट्स नॉट ईजी. तो आप प्लीज़ माइंड बना के आओ, सेट करके आओ कि मुझे 3 महीने मेहनत करना है, पढ़ना है. तो ऐसे ओ चलो जॉब मिल गया करके आप ट्रेनिंग में मस्ती करेंगे, घूमेंगे, ये सब नहीं. आपको पढ़ना बहुत होता है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. अगर आप क्लियर नहीं करे हो फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में तो आपको थर्ड में तो टर्मिनेट भी कर सकता है, इवन इन योर ट्रेनिंग पीरियड. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. सो ये प्लीज़ माइंडसेट बना के आओ कि कैबिन क्रू जॉब इज़ नॉट अबाउट ऑल मस्ती. यू हैव टू स्टडी. यू आर गोना बी ट्रेन टू सेव अ लाइफ. ओके, आपको फ़्लाइट में आके आपको किसी का लाइफ बचाना है तो आपको वो एज ए लाइफ सेवर भी हो. तो आपको वो सब चीज़ें ड्यूरिंग एमरजेंसी में आपको क्या करना है. तो ये दिल छोटे के लिए नहीं है, आपको दिल बड़ा करके आना है प्लीज़ गाइज. तो ये सब है. तो जस्ट एज ए सिस्टर आई एम जस्ट एडवाइसिंग आप सभी को, क्योंकि आजकल लोग को बहुत वो हो जाता है कि ओह वाह ये सब है. और हमें देख के भी मैं खुद में भी वाह रुत तो ये करता है, फ्लाई करते, US में घूमते हैं, बहुत मस्ती करते होंगे. नो गाइस, हमको पता है कि हमने कैसे बिना सो के जाग के कभी कभी खाने का भी अच्छा सा नहीं मिलता. यू हैव टू सर्वाइव ऑन दैट नूडल्स. नो, इट्स नॉट हेल्दी लाइफ. एंड देन आपको एक्ने भी आ जाएगा. तो ये बहुत चीज़ें. एंड आई विल शेयर यू अबाउट माई एक्ने स्टोरी ऑल्सो. बहुत ख़राब था. सो एवरीथिंग कीपिंग इन माइंड. सो ये सब चीज़ें हैं. सो प्लीज़ दे आर अच्छा भी चीज़ है, बुरा भी चीज़ है. तो प्लीज़ आप लोग माइंड सेट बना के ही ये जॉब पे जाना, इंटरव्यू में जाना. बिकॉज व्हेन यू गो फॉर दैट इंटरव्यू, अगर आपको बाद में बोले कि मन नहीं लग रहे, मैं छोड़ दूँगी ट्रेनिंग के टाइम में, तो किसी और का चांस किसी और को सेलेक्ट कर सकते थे. वो आपके लिए उन लोग ने सेलेक्ट नहीं किया. ऐसा भी होता है. सो प्लीज़ 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 प्लीज़, दिस इज़ नॉट अबाउट मस्ती. और हाँ करोगे, आप करोगे. आई एम नॉट सेइंग बहुत मस्ती है, बहुत पैसा कमाओगे. सो बहुत अच्छी चीज़ है, बट 1-2 बुरी चीज़ भी है जो आपको माइंड में रख के दिल बड़ा करके आना है. ओके, सो दिस इज़ माई एडवाइस, दिस आर माई टिप्स जो मैंने सीखा मेरा एक्सपीरियंस से. सो आई जस्ट शेयर विथ यू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, द बेसिक क्राइटेरिया. वो जो ज़रूरत है वो अगर आपके पास है आप है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप जाओ इंटरव्यू में, देखो कैरियर्स में दबा के देखो, जो भी एयरलाइंस का है डॉट कैरियर्स. ओके, वहाँ पे आप देखो वॉक इन इंटरव्यू है या वो है, वो करो. उसके बाद आपको बुलाया जाएगा. सो गो फॉर योर इंटरव्यू. लाइक आई सेड, स्माइल, CV अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेस, वेल ग्रूम, कॉन्फिडेंस. गो विद दैट स्माइल एंड डू योर बेस्ट. यू विल गेट सेलेक्टेड. एंड वंस यू आर सेलेक्टेड, आप जब भी ट्रेनिंग में रहोगे प्लीज़ 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 स्टडी हार्ड, अच्छे से करो. 3 महीने अच्छे से निकल जाएगा. फिर तो मज़े है. फिर आप फ्लाई करोगे, you will have fun, you will see new places, you will meet new people. It's gonna be good. So all the very best. So जो भी है और जो भी आपको पता है कि एयरलाइंस के लिए, कैबिन क्रू के लिए जॉब
ट्राई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, प्लीज़ ये वीडियो आप उनको शेयर कर देना. एंड like, share and subscribe to my channel. I will see you on my next video. Till then, take care. Bye bye.